Hello, my dear educators. This is Meenakshi Narula, founder and CEO at Mentoring the Mentors, an institute that accelerates your learning curve. So, my lovely educators, as we have been talking about various topics that are there in the course curriculum for B.Ed and M.Ed. So, in continuation with that, let us today talk about role of NCTE, that is National Council for Teacher Education. Like इसका role क्या है in teacher education? शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय परिषद या राष्ट्रीय जो काउंसिल है उसका क्या काम है, उसके क्या फंक्शंस हैं, उसका कैसे बिगनिंग हुआ, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कौन से कोर्सेज हैं दैट हैव बीन रिकमेंडेड, लाइक अबाउट द रेगुलेशंस आल्सो. So let's begin with that. So see, this is the website for National Council for Teacher Education. So what all information that I'll discuss today that I have taken from this website. So this is very, very authenticated, completely authenticated information because I have taken from the website. I'll be sharing the link in the description box below. If you want to download this information, the data, you can definitely go ahead with that. Now, NCTE, National Council for Teacher Education, beginning May 1973, it was just an advisory body for state and center government pertaining to obviously teacher education, right? Because this body is for teacher education. But slowly and gradually, when we got National Policy on Education in 1986, then this body got a statutory status and all the relevant, all the necessary steps for the improvement of फॉर द बेटरमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन. तो ये आप इतनी चीज इसके इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं. नाउ लेट्स गो अहेड विद द ऑब्जेक्टिव्स. इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्वियसली बनाई किस लिए गई थी? फॉर द इम्प्रूवमेंट, फॉर द बेटरमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन, राइट? सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनसीटीई इज टू अचीव प्लान्ड कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन सिस्टम थ्रू आउट द कंट्री. स्ट्रीमलाइंड एक प्रोसेस हो, ऑर्गेनाइज्ड वे में जो है एंड सिक्वेंशियल वे में एक प्रिपरेशन, एक करिकुलम डिफाइन किया जाए फॉर टीचर एजुकेशन. एंड द मैंडेट गिवन टू एनसीटी इज वेरी ब्रॉड एंड इट कवर्स वेरियस, I would say that myriad of courses, gamut of courses, plethora of courses, whatever you would like to say. The number of courses they are available that are being recognized by NCTE. pertaining to different age groups जो हमने बच्चों को पढ़ाना है. Like इसमें क्या लिखा हुआ है? That I have taken it is pre-primary, primary, secondary and senior secondary. So as per NEP, as I have shared in the previous video and you know very well, it is now we have got a new system of education starting from foundational, then preparatory, middle and then senior classes. तो चार stages जो हैं 5+3+3+4 जो मॉडल है उस चीज के लिए वहां के लिए जो अलग अलग टीचर्स जो हमें चाहिए, राइट, ताकि वो स्टूडेंट्स की जरूरतों के अकॉर्डिंगली, उनकी नीड्स, उनके लर्निंग स्टाइल, उनके एज ग्रुप के अकॉर्डिंगली पढ़ा सके. उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेस जो है उसको बनाना, उसका करिकुलम डिफाइन करना, उसको रेगुलेट करना, उसका एग्जामिनेशन एंड ऑल के लिए सारी चीजें प्लानिंग करनी एंड अकॉर्डिंगली टू गाइड द स्टेट्स टू डायट्स and the teacher educational institutes accordingly. So that is the objective of this body, right? So now let's go ahead with the functions. इसके functions क्या है? Undertake surveys and studies relating to various aspects of teacher education and publish the result thereof. Research करना, right? Various surveys conduct करना कि what is the need for the teacher education, उनमें क्या क्या changes required हैं, right? So as per the passage of time, as per the need of the hour, तो वो चीजें that has to be done by NCTE. Now, making recommendation to central and state government, universities, UGCs, recognized institutions in the matter of preparation of suitable plans and programs in the field of teacher education. Teacher education के लिए various programs को define करना, right? हर डिफरेंट लेवल पर, स्टेट लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर और मे बी डायट्स के लेवल पर, यूजीसी के द्वारा, टीचर जो कॉलेजेस हैं एजुकेशन के उसके द्वारा कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करना एंड कोऑर्डिनेट एंड मॉनिटर टीचर एजुकेशन एंड इट्स डेवलपमेंट थ्रू आउट द कंट्री एंड ले डाउन गाइडलाइंस इन रिस्पेक्ट ऑफ मिनिमम क्वालिफिकेशन, क्या चाहिए एक पर्सन को टीचर बनने के लिए, उसकी गाइडलाइंस को डिफाइन करना and lay down norms for any specified category of course or training in the teacher education की एक कोर्स को परस्यू करने के लिए उसका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, एडमिशन कैसे होगी, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, कोर्स का ड्यूरेशन क्या रहेगा, कोर्स का कंटेंट क्या रहेगा, मोड ऑफ करिकुलम डिलीवरी क्या रहेगा, इट विल बी ऑफलाइन, इट विल बी ऑनलाइन, सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस, मे बी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, असाइनमेंट देनी है, असेसमेंट देनी है, मतलब थ्रू आउट पूरा हर एक स्टेप बाय स्टेप उसको लेआउट करना. That is a function of NCTE. Now, laying guidelines for compliance by recognized institutions,
फॉर स्टार्टिंग न्यू कोर्सेज और ट्रेनिंग, नए नए कोर्सेज, नई नई ट्रेनिंग स्टार्ट करने के लिए रिकॉग्निशन प्रोवाइड करना इंस्टीट्यूट्स को। फिर उसके अकॉर्डिंगली वो पढ़ाने के लिए स्टाफ जो चाहिए, उस स्टाफ की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसका रिक्रूटमेंट करना, उस इंस्टीट्यूशन में क्या क्या फैसिलिटीज होना चाहिए टू कैरी आउट दैट पर्टिकुलर कोर्स, वो सारी चीजें डिफाइन करना, दैट इज द फंक्शन ऑफ एनसीटीई। एंड ले डाउन द स्टैंडर्ड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्जामिनेशन लीडिंग टू टीचर एजुकेशन क्वालिफिकेशन। उसके लिए एग्जामिनेशन क्या क्या होने चाहिए, उसका क्राइटेरिया एडमिशन का क्या रहेगा, एग्जामिनेशन क्या क्या रहेगा, स्कीम ऑफ कोर्सेज, ट्रेनिंग, कब कब वो एग्जाम्स होंगे, उनमें पास क्राइटेरिया क्या रहेगा, वो सारी चीजें डिफाइन करना। एंड ले डाउन गाइडलाइंस रिगार्डिंग उसका ट्यूशन फी क्या होगा, उसके अदर चार्जेस क्या रहेंगे, आई मीन कोर्स मटेरियल के चार्जेस में भी व्हाट ऑल। आपको पता है कि डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फीस आर देयर। अब बच्चों की हम फीस देते हैं, उसमें देखते हैं कितने कितने पॉइंट्स लिखे होते हैं, डेवलपमेंट चार्जेस हैं, ये व्हाट, I mean ABC XYZ number of categories are there. So I mean वो different different जो categories हैं उसको define करना कि कितने charges होने चाहिए particular course के लिए, वो भी define करना, that is the responsibility, that is a function of NCTE. Promote and conduct innovation and research in various areas of teacher education. में रिसर्च कंडक्ट करना और उसकी जो रिजल्ट है उसको डिससेमिनेट करना, सबसे डिस्कस करना, राइट, to on the social media, on different papers and journals, right, ki what research they have conducted. And examine and review periodically the implementation of norms, guidelines, standards laid down by the council. जो council जो नॉर्म्स बनाती है उसको periodically रिव्यू भी करेंगे कि वो इम्प्लीमेंट हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, उसमें कुछ चेंजेस की जरूरत है, कुछ अमेंडमेंट्स की जरूरत है, और अगर कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन उसको फॉलो नहीं कर रहा है तो अकॉर्डिंगली it has to review and guide the institutions, the organizations accordingly. And now evolve suitable performance appraisal systems, norms, mechanism for enforcing accountability on recognized institutions. Institution को एक बार recognition मिल गया वो कोर्स को कंडक्ट करने के लिए, तो उसके बाद में उसका अप्रेजल, जैसे हम लोगों का स्कूल्स में, इंस्टीट्यूशन में, अपनी कंपनीज में एनुअल अप्रेजल होता है, तो ऑर्गेनाइजेशन का एनुअल या मे बी जैसे भी एक उनका क्राइटेरिया सेट है उसके अकॉर्डिंगली अप्रेजल करना कि वेदर दैट ऑर्गेनाइजेशन इज रनिंग द कोर्सेज प्रॉपरली और नॉट, properly facilities are being provided or not, right, and ये सब चीजें उसको रिव्यू करना. Formulate schemes for various levels of teacher education and identify recognized institution and set up new institutions को develop करना, पुराने को continue करना, and take all necessary steps to prevent commercialization of teacher education. नहीं होना चाहिए. देखिए एक टॉपिक ये प्रॉपर ये भी आता है, commercialization of teacher education, इसके ऊपर भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जैसे कि कमर्शलाइजेशन हो चुका है एजुकेशन के फील्ड में, क्या है, बच्चे स्कूल नहीं जाते, अपने ट्यूशंस पर, अपने कोचिंग सेंटर पर जाते हैं, हर चीज के लिए फॉर दैट लाइक 50 आवर्स ऑफ टीचर ट्रेनिंग दैट इज देयर बाय मैंडेटरी बाय सीबीएसई, किस लिए, कि हमारा टीचर्स का डेवलपमेंट हो, लाइक फॉर दैट सीबीएसई खुद कह रहा है कि 25 आवर्स ऑफ ट्रेनिंग टू बी अटेंडेड बाय सीबीएसई, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है. ठीक है, आप अपनी ईमेल आईडी से हर महीने में 5 फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज और अटेंड कर सकते हो. और उसके अलावा जो 25 आवर्स हैं वो इन हाउस आपके प्रिंसिपल्स हैं जिनको एक्सपीरियंस है, वो नए टीचर्स को जो है वो फैसिलिटेट कर सकते हैं, उनका पेडागोजी, उनकी स्ट्रैटेजी, उनको क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए, मे बी द सीनियर टीचर्स, द एचओडीज, दे कैन आल्सो कंडक्ट द सेम. तो उसकी चीज के लिए बट क्या हो गया है कि नाउ सीबीएसई सेट की 50 आवर्स ऑफ ट्रेनिंग, तो कमर्शलाइजेशन स्टार्ट हो गया, सभी डिफरेंट डिफरेंट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हो गए कि हमसे आके आप सीखिए एंड इतने इतने रुपया दीजिए, कुछ दीजिए. यू हैव टू थिंक अबाउट इट, यू कैन बी द सेल्फ लर्नर्स आल्सो. आप जहां पर जर्नल्स में पेपर पब्लिश करते हो, यू आर फैसिलिटेटिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, so that is also a part of your CPD, that is continuous professional development. तो इस चीज के बारे में हम किसी और वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कमर्शलाइजेशन ऑफ टीचर एजुकेशन कैसे हो रहा है. नाउ इस चीज को रोकना, दैट इज द जॉब ऑफ एनसीटीई. Perform such other functions as may be entrusted to it by the central government. Central government के थ्रू जो और कई चीजें और कई प्रोग्राम्स और कई इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं उसको जो है फॉलो करवाना, दैट इज द जॉब ऑफ एनसीटी, दैट इज द फंक्शन ऑफ एनसीटीई. नाउ कौन कौन से रिकॉग्नाइज्ड प्रोग्राम्स है जरा उनके बारे में डिस्कस करते हैं. डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम लीडिंग टू डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन, राइट, प्री स्कूल की बात कर रहे हैं, फाउंडेशनल स्टेज के लिए, वहां के लिए डिप्लोमा है. एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन प्रोग्राम leading to diploma in elementary education, right, diploma in elementary education. And now we have
Bachelor of Elementary Teacher Education program leading to Bachelor of Elementary Education, Bachelor of Education, B.Ed, Master of Education, like that we have been doing. We have been discussing the various course curriculum, diploma in physical education, Bachelor of Physical Education, and then a Master of Physical Education. Different steps के ऊपर है. Now, next is diploma in elementary education. We have got Bachelor of Education degree through open and distance learning system. That is also available, and the previous one is also diploma in education through open and distance learning system. Diploma in arts education, visual arts, right? जो हमारे fine arts के teachers होते हैं, they complete this diploma. And then diploma in arts education, visual arts and performing arts, right? And then we have got integrated BA, B.Ed or BSc, B.Ed, 4 years integrated program. And then Bachelor of Education, 3-year part-time, leading to Bachelor of Education degree. ये part-time 3 years का degree है. And 3-year integrated program, leading to B.Ed, M.Ed degree. I mean, integrated अगर आप complete करना चाहते हैं ये course, so you will be completing the same in 3 years of duration. Now, NCTE regulations क्या है 2014 के accordingly. I'll just read each and everything so that I can discuss the important highlights of regulations 2014. We'll be discussing a wide basket with 15 programs is on offer. अभी हमने 15 programs के बारे में discuss किया in our previous slide. Recognizing for the first time 3 new programs हैं. You know very well, एक तो है 4 साल का जो BA, BSc, B.Ed का जो प्रोग्राम है, और 3 साल की B.Ed जो है वो पार्ट टाइम करना चाहते हैं वो, एंड 3 years का B.Ed, M.Ed जो है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम. ये हमारे न्यू प्रोग्राम्स हैं that are also included in those 15 programs. And the duration of 3 programs, B.Ed, B.Ped, M.Ed has been increased to 2 years. पहले 1 साल का होता था, now it has been increased to 2 years, providing more professional rigor and at par with the best international standards. ठीक है, टाइम बढ़ाना पड़ता है, हम सोचे बढ़ा दिया, तो कोर्स करिकुलम बढ़ाया और उसके अकॉर्डिंगली और टॉपिक्स हमने कवर करने हैं. सेल्फ पेस लर्निंग की बात हो रही है. वी शुड हैव सफिशिएंट टाइम टू अंडरस्टैंड द कोर्स curriculum, right? So that is done by NCTE. Now next is, henceforth in place of standalone institutions, teacher education shall be established in composite institutions, multidisciplinary, multi-teacher educational programs. I mean, ऐसे होना चाहिए कि स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस नहीं हो. टीचर एजुकेशन जैसे आप बहुत बार देखते हैं कॉम्पोजिट इंस्टीट्यूशंस होते हैं जहां पर टीचर्स भी सीख रहे हैं, डिफरेंट कोर्सेज, वोकेशनल कोर्सेज हैं, B.Ed है, M.Ed है, और उसके साथ में हमेशा हमारे टीचिंग प्रैक्टिस, मॉडल टीचिंग के लिए डिफरेंट स्कूल्स भी साथ में एसोसिएटेड होते हैं. एंड ईच प्रोग्राम करिकुलम कंप्राइजेस 3 कंपोनेंट्स. क्या क्या होता है इसमें? थियोरी है, प्रैक्टिकल है, इंटर्नशिप हम सब करते हैं. टीचर ट्रेनिंग के लिए जाते हैं या जो भी है, हम जो है पेपर्स, वी राइट पेपर्स, रिसर्च में पार्टिसिपेट करते हैं. थ्योरी है, प्रैक्टिकल है, राइट? जैसे हम साइकोलॉजी के कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं, वो बच्चों के साथ में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, या जिस भी फील्ड के रिलेटेड, लाइक फॉर एग्जांपल मल्टीपल इंटेलिजेंसेस की बात करते हैं, IQ की बात करते हैं, EQ की बात करते हैं, तो उसको प्रैक्टिकली भी यूज करके उसका डेटा जो है वो प्रोवाइड करना, वो हमें सबमिट करना है, एंड थ्योरेटिकल पार्ट ऑल्सो टू अंडरस्टैंड. And at least 25% of the program is developed to school-based activity and internship. Internship is really very important. जब तक practical exposure नहीं होगा, क्लासरूम में जाके हम जो है मॉडल टीचिंग नहीं करेंगे, तब तक we will not be able to like face the challenges in the real world. ICT, yoga education, gender, disability, inclusive education are integral part of each program curriculum. देखिए ये सारे जो टॉपिक्स हैं, कुछ भी हम करें, B.Ed करें, B.Ped करें, डिप्लोमा करें, NTT करें, PTT करें, कुछ भी करें, उसमें हर जगह पर क्या है कि ये सब हम ICT, योगा, जो इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन की बात कर रहे हैं, आर्ट इंटीग्रेशन, डिजिटल टूल्स, जेंडर के बारे में सेंसिटिविटी, स्पेशल एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन, मल्टीलिंगुअलिज्म, ये सब चीजें उसका पार्ट एंड पार्सल हैं. मोर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स आर एनकरेज. से आने वाले टाइम में और भी नए नए प्रोग्राम्स जो हैं वो लॉन्च किए जाएंगे एज पर द नीड ऑफ द आवर. एंड द टीचर एडुकेटर M.Ed degree comes with specialization in either elementary education or in secondary or senior secondary education. ठीक है, like for example, if a particular person is pursuing M.Ed, हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, हम secondary classes को लेकर उसमें specialization की बात कर रहे हैं कि क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना है, as I have shared in my previous video too. तो उसके आगे एक specialized जो है वो curriculum we can go ahead with that particular area जो हम परस्यू करना चाहते हैं. ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग हैज बीन मोर रिगरस विद बिल्ट इन क्वालिटी एश्योरेंस मैकेनिज्म. ठीक है, आप देखिए कि कितने, आपने भी देखा है कि कितने ओपन कोर्सेज भी जो हैं वो स्टार्ट करे गए हैं, चाहे वो B.Ed है, 3 years का पार्ट टाइम है, डिप्लोमा इन एजुकेशन है. नाउ
नेक्स्ट इज एनसीटी रेगुलेशन में और आगे क्या पॉइंट है, इन सर्विस टीचर्स हैव मोर ऑप्शंस टू एक्वायर हायर टीचर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस। आप सर्विस करते करते भी यू कैन गो अहेड विद पार्ट टाइम बीएड, फ्री टाइम का। आपको अगर कहीं जॉब कर रहे हैं, हमारी फैमिली सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, ग्रेजुएशन के बाद हम आगे नहीं हमें पढ़ पाए रेगुलरली, तो वी कैन गो अहेड विद पार्ट टाइम, राइट, ऑनलाइन कर सकते हैं। एनओसी फॉर्म अफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी बॉडी इज मैंडेटरी वाइल मेकिंग एन एप्लीकेशन। ठीक है, ऑब्वियसली आप एनओसी लेना बहुत जरूरी है जब आप ऑलरेडी किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो और उसके साथ साथ यू आर परस्यूइंग समथिंग, तो यू नीड टू गेट एनओसी। एंड प्रोविजन ऑफ एप्लीकेशन, पेमेंट ऑफ फी, विजिटिंग टीम रिपोर्ट्स एक्सेट्रा ऑनलाइन, ये सब चीजें आई मीन ऑर्गेनाइजेशन की जो वहाँ पे फी स्ट्रक्चर है, वो सारा पेमेंट है, जो उन्होंने रिकॉग्निशन दिया है, वो सब चीजें दैट इज अ बट ऑब्वियस, इट हैज टू complete that. Now, each teacher education institution to have compulsory accreditation in every 5 years फ्रॉम एन एक्रीडिटेटिंग एजेंसी रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई। देखिए टाइमली जो है इसको रिवाइज करना पड़ता है, जैसे हम स्कूल की एफिलिएशन लेते हैं सीबीएसई की, फिर हमें बार बार हमें रीएफिलिएट करना पड़ता है एज पर द टाइम। बेशक हम ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर करना शुरू हो गए हैं आजकल, ठीक है, तो वट एवर इसका भी जो प्रोसीजर है वी हैव टू गो हेड विद दैट, एंड फॉर दैट एनसीटीई ये इंश्योर्स की सभी टाइमली अपना री एक्रेडिटेशन करवाएं। सो माय लवली एजुकेटर्स, दीज वर the various functions, objectives of NCTE, National Council for Teacher Education. So this question will be asked during your this subject, like when we talk about teacher education. Okay, if you want to know more about such topics, you want to enhance your knowledge, stay tuned, subscribe to my channel, and don't forget to share these videos in your community with more teachers like who are looking forward to this kind of information. And thank you all of you for watching Mentoring the Mentors. Bye-bye.